Hello everyone and Assalamu alaikum, and thanks for joining us. Thanks for watching our lectures. We are discussing about the marginal revenue and market price. Basically, is a very important relationship. What is the relationship between the market price and the marginal revenue? So we are discussing here two concepts. Two concepts mean number one concept that we discussed earlier, and now we are just revising it. In a simple condition, in an ideal condition, in a very basic condition, we are discussing about the basically the perfect competition. And when we're discussing about the perfect competition, so we are saying that there are the many buyers and there are the many sellers. So the market is working in a very competitive way, and the full competition is that and the full competition is there, and no effect of the market price. So that's mean very important sentence is written over there: no impact, no effect of the market price. So we discussed that many buyers, many suppliers, no impact of the market price. If there is no impact of the market price, so what is the firm is doing? What is the activity of the firm? What is the behavior of the firm? Firm is basically called the price taking firm. It is the price taking. Price taking means whatever price is decided in the market, whatever price is the phenomena of the market is showing that. So the firm is adopting that price. Now they are deciding that what they have to produce, in which they will earning, they were getting some profit. But if the scenario is different, there is a competition, but the situation is this: the firm not always be able to sell all it wants. There is a willingness of this demander, willingness of the consumer is also very necessary. So if the willingness of the consumer is the important, so we have to think that how a consumer will attract. So very simple, the law of demand says that the consumer will interact as the price decreases, the demand will increase. So at the prevailing market price, it's not necessary the firm can sell it all outputs. So when it wants to sell all outputs, so just he has to change some market price. तो अब देखना ये है कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन क्या बन रही थी और हमारी इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन बनेगी. अगर परफेक्ट कंपटीशन की हमने बात करी और हमने क्योंकि डील करना है रेवेन्यू को, तो यू नो अबाउट इट कि व्हाट इज़ दिस इज़ बेसिकली द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, and this is basically the quantity, and when we will take the into, so we will get the basically the total revenue. And we are saying that in this condition, what are the situation of the curves? Very simple. If we are discussing our total revenues look like this linear line. Okay, because क्योंकि वो आगे जा रहा है. Price is not depending on the quantity. Price is determined by the market, and the firm is a price taker, so there is no any dependency of the quantity. So what will be the marginal revenue? It will take the derivative of the total revenue with respect to the Q. So just the price is there and the Q will be eliminated. So again the marginal revenue is equal to the price. And if the marginal revenue is equal to the price, so we are saying that the marginal revenue, price and average revenue, total revenue divided by the quantity, so PQ divided by the quantity is also P. So in this condition, we are saying the marginal revenue, average revenue and price all are the same. And you can also say this, if this is the total revenue, they all are the same. Marginal revenue,
एवरेज रेवेन्यू एंड द प्राइस। सो ये एक पॉसिबल कंडीशन है, और ये हम तो देख चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमें इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अब हमें देखने की ज़रूरत है कि ना तो हमारे पास कोई प्राइस का फंक्शन होगा इधर, ना हमारे पास कोई मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म है, वो एक सीधा नंबर आ रहा है, एक यूनिफॉर्म नंबर आ रहा है, तो फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। एक सिंगल वैल्यू जो रिपीट कर रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू का भी कोई फंक्शन नहीं होगा, मार्जिनल रेवेन्यू का भी कोई फंक्शन नहीं होगा, प्राइस का भी कोई फंक्शन नहीं होगा। और हम ये बोलेंगे कि जो मार्केट में प्राइस डिसाइड होगी, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है और वो अपने आउटपुट को एक गिवन प्राइस के ऊपर सेल करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट का भी नहीं सोचेगी और लॉस भी नहीं करवाएगी। इट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन, वो चलती रहेगी। बट व्हेन द सिचुएशन इज बीइंग चेंज एंड वी आर सेइंग दैट, तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि डिमांड कर्व इज स्लोपिंग, demand sloping curve more than, so now the downward sloping curve, more output can be sold if the firm reduce the price that goods। तो very simple, इस कंडीशन में आपका जो है लॉ ऑफ डिमांड वाली चीज़ फॉलो नहीं हो रही। एक प्राइस है, उस पर क्वांटिटी सेल हो रही है, तो देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, तो डिमांड का अंदर चेंज का सवाल पैदा नहीं हो रहा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो प्राइस होगी वही एवरेज रेवेन्यू होगा, वही मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और डिमांड कर्व भी वही होगा, बिकॉज क्योंकि एक प्राइस के ऊपर आप स्पेसिफिक आउटपुट सेल कर रहे होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में वो आपसे कहता है कि यहाँ सिचुएशन आपकी बदल जानी है और आपके पास टोटल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और क्या आप करने जा रहे होंगे, बेसिकली यहाँ पर आपका होगा आउटपुट होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर आपका डिफरेंट होगा और डिमांड कर्व का बिहेवियर आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी प्राइस होगी और रेवेन्यू होगा, तो इस सूरत हाल में आपका जो डिमांड कर्व है वो आपका इस तरह से होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिमांड कर्व के नीचे होगा और वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब देखिए सिचुएशन देखिएगा बहुत गौर से, यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस सब एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि फर्म प्राइस टेकर है। लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप डिस्कस करना है मार्केट प्राइस में और एवरेज रेवेन्यू में, मार्जिनल रेवेन्यू में, तो आप देखना पड़ेगा कि फर्म को जब अपनी प्राइस में तब्दीली करेगी तो उसको उसके रेवेन्यू में इजाफा नज़र आएगा, और आपका जो डिमांड कर्व है वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। नंबर वन, पहली बात। दूसरी सिचुएशन के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिमांड से नीचे होगा। अब द क्वेश्चन इज दैट वेयर द फर्म विल प्रोड्यूस, कितने आउटपुट प्रोड्यूस फर्म करना चाहेगी इस सिचुएशन में कि उसको क्या प्राइस मिले। अगर फर्म प्राइस टेकर होती तो वो यहाँ पर किसी एक जगह अपनी प्राइस को सेट कर लेती और बस वहाँ पे प्रोड्यूस करती रहती। लेकिन क्योंकि फर्म जो है वो इस वक्त प्राइस को मार्केट के हिसाब से सेट करना चाह रही है और अपने ज़्यादा आउटपुट सेल करना चाह रही है, अट्रैक्शन देना चाह रही है, तो वो ये देखेगी कि मुझे उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है कि जहाँ पर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज़ बिकमिंग ज़ीरो। ज़ीरो मीन दैट if the marginal revenue is zero, so that's mean total revenue at max। मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम होगा, और बियॉन्ड दिस आउटपुट प्रोड्यूस करने पे आपके रेवेन्यू में इजाफा होने के बजाय डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। When we are saying this, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जो आपका रेवेन्यू कर्व है वो एक पीक के बाद डाउन होगा। दिस इज, इट विल नॉट बी आ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब मार्जिनल रेवेन्यू मुस्तकिल चेंज हो रहा है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, वो उसमें चेंजेस हो रही हैं, दैट्स व्हाई इट्स डिक्लाइनिंग कर्व। और व्हेन इट विल बी एट मैक्सिमम, जब मार्जिनल रेवेन्यू यानी स्लोप ऑफ द टोटल कर्व विल बी ज़ीरो, और वो एक पॉइंट होगा जिसे हम क्यू स्टार कहते हैं, वो क्यू स्टार ये है। इन दो बातों को हमें समझने की ज़रूरत है कि उस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन में आए
और इस सिचुएशन से आने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि 2 या 3 चीज़ें हैं, इनका हमें ख्याल रखना है कि डिमांड कर्व आपका ऊपर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका नीचे होगा। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व व्हेन इट विल टच टू द एक्स एक्सिस, तो एट दैट कंडीशन आप व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली यू विल गेटिंग द मैक्सिमम रेवेन्यू। अच्छा, व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू, सो यू विल डिसाइड दैट what will be the price that should prevail in the market to get the maximum benefit. So you can find out whatever you are selling at this thing, so what should be the price, and if you will draw the line here, so demand curve, so what will the price in the correspondent with the demand curve, that is called the price at which you will get the maximum revenue. तो ये वो क्वांटिटी होगी कि जिससे आप अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे। तो दिस इज सिचुएशन एंड वी विल लर्न समथिंग मोर कि अगर यही सिचुएशन है तो हम इसको मज़ीद कैसे जान सकते हैं। इसकी हम छोटी सी एक डेरिवेशन करते हैं, इसकी प्रॉब्लम करते हैं कि ताकि जिससे हमें ये चीज़ें मज़ीद हमें समझ में आ सकें। दिस इज बेसिकली अ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू मीन्स P into Q, but now we will say that the P is the function of Q, क्योंकि अब P मार्केट प्राइस पे डिपेंड करेगा, तो ये आपको खाली P नहीं, ये P is the function of Q बन जाएगा। और जब हम इसका मार्जिनल रेवेन्यू लेंगे when it will take the partial derivative, so what we are saying basically, so we will apply the product rule and we will apply the product rule, so PQ आपका सेम रहा एंड जब आपने Q का डेरिवेटिव लिया फिर आपका Q सेम रहा एंड देन आपने विद रिस्पेक्ट टू Q लिया। अब बहुत समझने की बात है, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर बच रहा है, वो बच रहा है P प्लस Q इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्या हो गया। जब हमने सिंपल यहाँ डेरिवेटिव लिया था P इंटू क्यू का और P वॉज नॉट द फंक्शन, सो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं किया था, P को एज ए कॉन्स्टेंट लेके बाहर किया और जस्ट Q का जब डेरिवेटिव लिया तो हमें एक सिंगल कॉन्स्टेंट वैल्यू मिली और हमने पता लगा कि वो स्ट्रेट लाइन है। इस कंडीशन में हम नोट करें कि हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पा रही, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना की कोशिश करी बिकॉज कि P खुद एक फंक्शन बन गया, क्वांटिटी सेल के हिसाब से प्राइस को चेंज करना पड़ेगा, तो वो एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के मुताबिक ये बात समझ में आ रही है कि द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द P, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द P। यहाँ पर भी मार्जिनल रेवेन्यू P के बराबर है, यहाँ पर भी मार्जिनल रेवेन्यू P के बराबर है, लेकिन कुछ पोर्शन इसमें ऐड हो रहा है कि जो इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू को यूनिफॉर्म कर्व से हटा रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। अब हमें यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत है कि ये दोनों फिगर्स पॉजिटिव है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का तो मकसद ये है कि वैन हम क्यू में इजाफा करना चाहेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमें डिक्रीजिंग होता नज़र आएगा। अब इसको देखने की ज़रूरत है, P इज़ द पॉजिटिव वैल्यू जो मार्केट में प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर आप अपनी क्वांटिटी को चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन प्राइस इज़ ऑलवेज द स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी ये वैल्यू, तो ये तो आपके एक पॉजिटिव ही वैल्यू बनेगी। यहाँ पर आप बात करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का अब एक सिलसिला और भी है कि Q, वट एवर Q आज देयर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस पोर्शन। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसको समझिए। ये बताना चाहता है कि चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ बेसिकली द आइडिया। यानी कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर क्वांटिटी, अब चेंज इन क्वांटिटी से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपके 100 यूनिट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं एंड नाउ यू वांट टू सेल द 110 यूनिट्स, तो व्हाट विल द चेंज इन द प्राइस, क्या प्राइस में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, अगर आपके 100 यूनिट मार्केट में सेल हो रहे हैं और फर्म वांट्स टू सेल द मोर यूनिट्स, तो डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। तो यू वांट टू इंक्रीज द डिनोमिनेटर, सो यू हैव टू डिक्रीज द
numerator. So that type of relation is showing that the derivative of this thing will be the negative. So that's why this term will become the negative. और प्राइस जो मार्केट में कर रही होगी तो हर बार जो भी वैल्यू प्राइस की होगी उसमें से कोई ना कोई वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी, कोई ना कोई वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी. डेट्स वाई यह आपको ये स्लोप है, ये जो कर्व है वो आपको प्राइस के साथ साथ डिक्लाइन होता हुआ नज़र आएगा. ये फिगर जो है बेसिकली आपकी नेगेटिव बिहेव करेगी. सो ये हमने जानने की कोशिश करी कि व्हेन फर्म इज़ नॉट द प्राइस टेकर, फर्म इज़ वांट टू सेल द मोर, सो फर्म वांट्स टू चेंज द प्राइस, तो उस कंडीशन में आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेव होगा वो लुक लाइक दिस होगा. अब अगर ये सिचुएशन हमें समझ में आ जाती है और ये सिचुएशन हमें समझ में आ जाती है तो इट विल आवर क्वेश्चन कि वी हैव टू परफॉर्म सम एक्सरसाइज, a mathematical example to understand this situation. So first of all we are saying that let's suppose if we have the demand curve Q is equal to 50 minus 5P. Okay, so if you are dealing in the perfect competition तो आपके पास तो डिमांड कर्व होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि डिमांड कर्व तो ये बता रहा है कि फर्म चेंजेस होने से, ये एक अलग सिचुएशन है. अभी हम इस बात को समझ रहे हैं कि डिमांड कर्व अगर इस सिचुएशन में रखें तो किस तरह से बन रहा है. क्यू जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है एज रिस्पेक्ट टू द प्राइस. इसका मतलब ये है कि देयर आर डिफरेंट प्राइसेस और इस सिचुएशन में तो हमारे पास एक ही प्राइस आ रही है और वो है वो प्राइस जो मार्केट ने डिसाइड की इन दी प्रेजेंस ऑफ फुली कॉम्पिटिटिव बिहेवियर और अवेलेबल हो गया. अब इस सिचुएशन में हमने डेटा लिया तो हमें डिमांड कर्व मार्केट का मिल गया. ये कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है एंड देयर इज द बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट इज देयर. मार्जिनल कॉस्ट मीन कि हम यहाँ पर बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल यूँ कर रहे हैं कि हमें वो सिचुएशन चाहिए कि जिसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें. अब हम उसको एवेल्यूट करते हैं. अगर ये हमारे पास क्वांटिटी का कर्व है तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इसमें इसको प्राइस का फंक्शन बना लेते हैं. और अगर हम इसको प्राइस का फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात को समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि बेसिकली P 5P अगर मैं इसके इस तरफ ले आऊँ तो मुझे 50 माइनस Q करना पड़ेगा इसको. वेरी सिंपल. एंड इफ़ आई वॉन्ट टू सेपरेट द प्राइस, so price basically will be the function of 50 divided by 5 and Q divided by 5, or we may say in this way 10 minus Q over 5. Very simple. So if the price is equal to this thing, so we can easily convert into the total revenue if multiply by Q. So what will be total revenue is equal to 10Q minus Q square over 5. And if we want to see the marginal revenue, so the marginal revenue equal to, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो 10 minus 2Q over 5. अब बात को हमें समझना है. मार्जिनल रेवेन्यू अगर इसके बराबर हो गया तो हमें इस बात को देखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन में ले जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर और भी समझ में आएगी कि चाहे प्रॉफिट, चाहे आपके पास कंपटीशन परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, सिचुएशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की वो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ही रहेगी. और अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल करवा लें मार्जिनल कॉस्ट के तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि अगर मैं इस पूरी चीज़ को 10 माइनस 2Q ओवर 5 को इक्वल करा दूँ 4 के, तो मैं यहाँ से जो क्वांटिटी इस वक्त निकाल रहा हूँगा वो क्वांटिटी विल शो दैट एट विच क्वांटिटी द फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. सो 6 into 5 2Q and Q is equal to 15. बहुत गौर से सुनिएगा. So Q is the basically this is the Q at which the firm will maximize the profit.
यहाँ पर ध्यान में रखिए कि प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इज़ डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पर फर्म मैक्सिमाइज करेगी प्रॉफिट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस लेवल पे फर्म मैक्सिमाइज करेगी प्रॉफिट उस लेवल पे रेवेन्यू भी मैक्सिमम हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज के अगर आप इस बात को देखें कि अगर इसमें से इस क्यू पे हम देखते हैं कि वो कितना प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि हमने ये बात अंदाज़ा लगा लिया है कि ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आपको प्राइस डिफरेंट होगी। तो अगर हमारे पास प्राइस का फंक्शन बहुत इजीली यह बना हुआ है, P इज़ इक्वल टू 10 माइनस Q ओवर 50, तो मैं यहाँ पर आपको अगर ये जानना चाहूँ कि प्राइस क्या होगी, तो मैं प्राइस को ज़रा डिफरेंट कलर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो Q इज़ इक्वल टू 15 पे मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ प्राइस चार्ज करके फर्म अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि फर्म को सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। समटाइम फर्म ये बोलती है कि भाई मुझे अगर थोड़ा कम प्रॉफिट भी हो जाए लेकिन मेरी सेल बढ़ जाए, मेरा सारा माल निकल जाए, सारी मेरी चीज़ें बिक जाएं, मैं थोड़े प्रॉफिट पे भी इंजॉय कर लूँगा। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मेरी ज़्यादा, अब इसको ज़रा देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 7 है और Q है तो आपके पास रेवेन्यू कितना बना। अगर आप इस क्वांटिटी को इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर आप करते हैं 7 5 कितना बना 105। तो 105 रुपीज़ फर्म इस वक्त अपनी सेल बढ़ा रही है। अब फर्म को अगर सिर्फ ये फिक्र है कि मैं इतनी सेल करूँगी जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, वट एवर अमाउंट इज़ देयर, लेकिन अगली तरफ वो ये सोचती है कि यार मुझे बेसिकली सेल से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन क्या होगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन के लिए जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ हमने बात की थी, इस Q स्टार के ऊपर अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रही होगी। इफ़ MR इज 0 और MR 0 की सिचुएशन आप ये देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे 10 माइनस 2Q ओवर 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस सिचुएशन में आप बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू 2Q ओवर 5 अगर उसको वहाँ ले जाते हैं और व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विद 5 इज 50 and 50 divided by 2, so the Q will be 25। वेरी सिंपल। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर फर्म 15 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेगी और सेल उसको मार्केट की प्राइस रखनी पड़ेगी 7, और अगर 7 रखेगी तो टोटल रेवेन्यू सिर्फ 105 आ रहा है। लेकिन फर्म अगर चाहती है कि अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे तो उस सिचुएशन में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो मार्केट में अपना शेयर भी बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगी, और लेकिन उस नतीजे में ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा प्रॉफिट करे। लेकिन अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी करती है तो प्राइस को देखते हैं कि प्राइस का जो फंक्शन हमें मिला था वो बहुत सिंपल था कि हम दोबारा उसको जो करते हैं कि P इज़ इक्वल टू 10 माइनस Q ओवर 50। अब Q आपके पास 25 आ गया है, तो उस सिचुएशन में आपकी प्राइस कितनी बन रही है 5। वेरी सिंपल। तो अगर फर्म 25 यूनिट सेल करना चाहती है तो उसको प्राइस कम करनी पड़ी, और कम करने से उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिक गए, और जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिक गए, इतने उसके यूनिट बिके, इतनी उसकी सेल थी, तो उस सूरत हाल में अगर आप कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू सेज दैट 25 इंटू 5 यानी कि 125। वाओ। सो what is the basically the situation is a good for the firm। इस सिचुएशन में उसका प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो रहा है लेकिन उसकी आउटपुट भी कम है और मार्केट की प्राइस भी ज़्यादा है। तो फर्म कहती है क्यों ना हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, मार्केट में अपना शेयर भी बढ़ाएं, लोगों को भी बेनिफिट करें, प्राइस को कम करें और अपने रेवेन्यू को भी मैक्सिमाइज करें ताकि हमारी फर्म की सिचुएशन भी बेहतर हो। बिकॉज डेफिनेटली अगर फर्म की सेल बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ा, उसकी सिचुएशन बेहतर हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब वो मार्केट में 15 के बजाय 25 यूनिट सेल कर रही है, इसका मतलब मार्केट में अपना शेयर बढ़ा रही है, नंबर 2। नंबर 3 कि यहाँ पर वो 7 लोगों को प्राइस रख रही है या प्राइस को कम रख रही है, तो प्राइस को कम करना अगेन मार्केट को अट्रैक्ट करने के और बेनिफिट देने के बराबर है, नंबर 3। सो इस सिचुएशन में
फर्म जो है वो ज़्यादा बेनिफिट गेन कर रही है। तो ये सिचुएशन हमें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि अगर हमें प्रॉब्लम दी जाए कि अगर फर्म का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो और मार्जिनल कॉस्ट से हम चलें, तो सबसे पहले हम ये जान सकते हैं कि कौन सा आउटपुट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा और कौन सा आउटपुट रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करेगा। और दोनों सिचुएशन पे हम इस बात को देखेंगे कि जब आइटम को हमें ज़्यादा सेल करवाना था तो प्राइस ज़्यादा थी, जैसे ही हमने प्राइस में 7 से 5 तक की रिडक्शन करी तो हमें आउटपुट ज़्यादा सेल होता नजर आया। और यही डाउनवर्ड स्लोपिंग की निशानी है कि आप प्राइस कम कर रहे हैं, डिमांड जो है वो आपकी ज़्यादा हो रही है, आउटपुट आपका ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 25 ये आउटपुट है तो डेफिनेटली जो 15 होगा वो ये आउटपुट होगा, और इस 15 पे जो आपकी जो प्राइस बन रही होगी वो बन रही है 7, और इस वाले पे जो आपकी प्राइस बन रही है वो 5। तो ये कर्व भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है और ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपको शो करती है कि मार्जिनल रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है मार्केट प्राइस के साथ। और व्हेन वी रिलेट दिस, सो वी बेसिकली एनालाइज द सिचुएशन फॉर द फर्म कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन लेवल at which the firm can maximize the profit and which the firm can maximize the revenue. So it is all about this lecture, and I hope you will learning about it. So if you have any query, you can ask from by the different ways, by email, by comments, and just you can ask by the WhatsApp number. So please subscribe our channel for more economics and statistics videos. Thank you.